how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is the shoemaker and the demon. Once there lived a shoemaker named Bhiku in the old city of Varanasi. He was a good craftsman and knew how to make fine shoes. Yet he remained the poorest shoemaker in the land because Bhiku's tongue was against him. Instead of concentrating his energy on making shoes, he spent most of his time boasting of his bravery. एक बार की बात है, एक शू मेकर हुआ करता था, मतलब एक मोची हुआ करता था या जूते बनाने वाला, कुछ भी कह लो, वो हुआ करता था जिसका नाम था भीकू, और वो वाराणसी की ओल्ड सिटी में रहा करता था. वो एक अच्छा क्राफ्टमैन था, बहुत अच्छे से वो शूज़ वगैरह बनाया करता था, लेकिन फिर भी वो क्या था, वो अभी भी पुअर ही था, बहुत ही गरीब था, क्योंकि वो क्या करता था, वो अपनी बोस्टिंग करता रहता था, अपनी खुद की ही तारीफ़ें वो हमेशा किया करता था. In the entire city of Varanasi, there was just one guava tree. The Maharaja loved guavas dearly, and every day he started his breakfast, lunch and dinner with a guava. One morning when the Maharaja's servants as usual went to the guava tree to pluck the fruits for the Maharaja, they came back screaming at the top of their voices, "There's a demon in the guava tree. We can't go near it." अब जो वाराणसी की सिटी थी वहाँ पर बस एक ही अमरूद का पेड़ हुआ करता था, और वो जो महाराजा था वहाँ का, उनको अमरूद खाना इतना पसंद था कि वो अपने नाश्ते में, अपने लंच में, अपने डिनर में एक गुआवा ज़रूर खाते थे. अब एक सुबह की बात है, जब महाराजा जो है उनके सर्वेंट को उन्होंने भेजा गुआवा तोड़ने के लिए, तो वो वापस आया चिल्लाता हुआ, मतलब कि उस ट्री में क्या है, एक डेमन है, एक भूत है. The Maharaja was upset because he didn't have guavas that day with his meals. He called his servants and questioned them. "What the monster looks like? He has a long pointed head," said the first servant, trembling like a leaf. अब वो इकलौता ऐसा दिन था जिस दिन राजा ने एक भी गुआवा नहीं खाया, तो उसे बहुत गुस्सा भी आया. तो उसने अपने सर्वेंट्स को बुला के पूछा कि वो जो डेमन है, राक्षस है, वो किस तरह दिखता है. तो उन्होंने कहा कि उसका जो हेड है वो कैसा है, पॉइंटेड है, और वो कैसा दिखता है, एक लीफ की तरह वो दिखता है. His head is all green, said the second servant, and there are no shoes on its feet, said the third servant. वो कहता है उसका जो हेड है वो पूरा कैसा है, ग्रीन है, और उसके पास उसके फीट में कोई भी शूज़ नहीं है, मतलब वो बिल्कुल बेयर फीट है. The Maharaja immediately summoned a meeting of all the citizens in his palace courtyard and spoke to them about the demon on the guava tree. Eventually, the Maharaja commanded Bhiku, "You always boast of your valors. Go to the guava tree and get rid of the monster." अब राजा ने अपनी सभा बुलाई और उनसे डिस्कस करने लगा कि भाई उस मॉन्स्टर को, उस डेमन को कैसे वहाँ से हटाया जाए. साथ ही साथ वो जो भीकू था, जो शूमेकर था, उसको भी बुलाया गया. उससे कहा कि तुम बड़ा अपनी बड़ाई करते रहते हो, जरा बताओ कि तुम कैसे उस मॉन्स्टर से हमें छुटकारा दिलाओगे. Bhiku returned home, and the very next morning he went to the guava tree. He stared at the tree very timidly, and just as he was wondering if he should take to his heels before the demon could see him, a frail voice called out from the tree, "Brother, brother, you have got to help me." He was barefooted. "Oh, you are the demon," screamed Bhiku. अब भीकू जो था नेक्स्ट मॉर्निंग उस पेड़ की तरफ क्या हुआ, वो चल पड़ा, और उस पेड़ को वो ध्यान से देखने लगा, और साथ ही साथ उसे ऐसा लग रहा था कि मैं इस पेड़ से जब तक वो मॉन्स्टर नहीं आता वापस क्या कर लेता हूँ, गुआवा जो है वो चुरा लेता हूँ. लेकिन इतने में उसको एक आवाज़ आई कि भाई भाई, क्या तुम ही हो वो शू मेकर? डेमन. "Who is a demon? I am no demon," yelled the little man. "Then who are you?" questioned Bhiku, still frightened. अब वो कहता है कि क्या तुम ही हो राक्षस? वो कहता है कि मैं राक्षस नहीं हूँ. "I am a fowl living in a nearby village. I have been hiding in the tree because I don't want to go home. I am afraid of my wife."
वो कहता है कि मैं कोई डेमन नहीं हूँ, कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं भी एक फार्मर हूँ और पास के ही विलेज में रहता हूँ और मैं इस ट्री में इसलिए छुपा हुआ हूँ क्योंकि मुझे अपने घर वापस नहीं जाना. Why? Bhikkhu asked. Yesterday, while I was going back home through this path, I met a man selling funny hats. See the one I am wearing. I liked the hat, but I had no money to buy it. I gave the man my shoes in exchange for that hat. Now, if I go home barefoot, my wife will shout at me. Bhikkhu laughed aloud. He pulled out a piece of leather he always kept in his big pocket. He took over needle and thread from a smaller pocket. In a matter of a few minutes, he made a pair of very fine shoes and gave it to the little man. The little man was overjoyed and thanked Bhikkhu. Then he hurried home. अब जब भिक्खू उससे पूछता है कि क्यों तुम अपने घर वापस क्यों नहीं जाना चाहते, तो फिर वो कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था कल और मुझे एक हैट वाला दिखा, तो हैट वाले से मैंने क्या ले ली, हैट ले ली जो मैंने पहनी हुई है, लेकिन मुझे उसे देने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने उसे बदले में क्या दे दिए, अपने शूज़ दे दिए. अब मैं घर जाने से डर रहा हूँ क्योंकि वो जो शूज़ है वो मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट दिए थे, अगर वो उन शूज़ को मेरे पैरों में नहीं देखेगी तो वो मुझे क्या करेगी, गुस्सा करेगी, मुझे डांटेगी. तो कहता है इस डर से मैं घर नहीं जाना चाह रहा और इस पेड़ पे छुपा हुआ हूँ. तो वो जो शू मेकर था, भिक्खू जो था, वो क्या था, वो तो शूज़ बनाता था, तो उसने उसका नाप लिया और उसके पास एक पीस ऑफ लेदर था और उसने उसके लिए क्या बना दिए, शूज़ बना दिए. When Bhikkhu returned to the palace, the Maharaja and the citizens were all anxiously waiting for his return. Bhikkhu finally announced that he had got rid of the monster. अब भिक्खू पैलेस महल में वापस गया और उसने महाराजा से बताया कि वो जो मॉन्स्टर है वो उस पेड़ को छोड़ करके चला गया है. The Maharaja was thrilled. He rose from his throne and led Bhikkhu to see a seat near him, and the people waved their handkerchiefs and greeted him. Then the Maharaja proudly announced that as a token of appreciation for Bhikkhu's act of bravery, he was appointing him the governor of one of his provinces. Bhikkhu became a very rich and famous man, but he still continued making shoes as a hobby. अब भिक्खू ने राजा से जो सच था वो छुपाया और उसको बताया कि उसने उस मॉन्स्टर को उस पेड़ से भगा दिया है. ये सुन के राजा जो थे वो बहुत थ्रिल्ड हुए, बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी हुए कि भिक्खू ने ये काम कर दिखाया. उसको बहुत ज़्यादा इन्होंने पैसे दिए, अशर्फियाँ दिए, कॉइन्स वगैरह दिए, साथ ही साथ राज दरबार में उसे एक पोस्ट भी दे दी गई. लेकिन जो भिक्खू था उसने अपना जो शूज़ बनाना था वो उसने क्या किया, वो उसने जारी ही रखा. मतलब वो उसका जो काम था वो भी वो करता रहा और साथ ही साथ वो राजमहल में भी काम करता था. तो बच्चों देखा आपने कैसे भिक्खू ने अपनी सूझबूझ से उस मैन की हेल्प तो की ही की, साथ ही साथ अपने राज्य में राजा से उसने इनाम भी ले लिया. तो मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. अब इस स्टोरी को आप खुद से रिवाइज करेंगे और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी आप खुद से करेंगे.